Hey guys, কেমন আছো তোমরা? Welcome to my channel, Neat Mania. Make in India, Made in India. इस सीरीज़ में आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ टाटा का न्यूएस्ट एडिशन टाटा पंच। 1991 में टाटा ने अपनी फर्स्ट कार लॉन्च की टाटा सिएरा और उसके बाद 1998 पे लॉन्च की टाटा इंडिका। ये दोनों ही गाड़ी बिना कोई फॉरेन कोलैबोरेशन के इंडिया में इंजीनियर्ड होने वाली फर्स्ट कार थी और यही टाटा ने वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार लॉन्च की थी 2008 में टाटा नैनो। रेस्ट इज़ हिस्ट्री एंड वी फील very proud of our global Indian brand. The cars produced by Tata are one of the most sold and reliable cars in the country. But how does Punch fare in all of them? We'll find out when I talk to the owner and get all the juicy details of the ownership for Punch. आज हमारे साथ ये गाड़ी का ओनर मिस्टर अतुल करीम मौजूद है और ये हमें बताएंगे कि टाटा पंच का ओनरशिप अब तक कैसा रहा। सो आप बताइए कि ये गाड़ी कैसे आप चूज़ किए, क्या जर्नी था सो फार? So let me tell you, this is the base AMT variant, automated manual transmission. So basically the AMT variant starts with Adventure model. अच्छा, So Adventure AMT is the first model that comes from in Punch Tata तो Punch आपका model. क्या एडवेंचर मॉडल ही है? Adventure AMT. AMT है मॉडल, ओके। So my criteria was I wanted a car that should be less than 4 meters in length. अच्छा, Should have a decent ground clearance. That was my second criteria. And the third criteria was the price point, which is between 7 to 7.5 lakhs. और आपको ये कितना पड़ा? This is 7.28 ex showroom, and road on road is 8.63 lakhs. तो आप जब गाड़ी खरीद रहे थे उस टाइम पे was Punch the only option or were you looking at some other brands as well? I was certainly looking for multiple brands. I took a test drive also. The very close criteria was Renault Kiger अच्छा, and Nissan Magnite, Citroen, the latest compact car C3. we have of Citroen C3. right. And of course Suzuki Ignis was also there, but I think Ignis was too small for me. Since I was using a sedan earlier, which is a Hyundai Accent GLE, I'm sorry. Right. So that sedan was a very powerful car, and it had a very good power to weight ratio. So Right. I wanted a car that should match the power to weight ratio of Hyundai Accent, but at the same time it should have a good build quality as well, And compact. and should be a compact. Right, okay. So then when did you start looking for the car and how did you come at Punch? Well, my search actually started in January 2022, Right. as soon as the COVID was over. Okay. And I wanted to replace, I was looking for a decent replacement for the Ascent, though I was not willing to let it go, but I thought it's the best time to go for something which is new. And from the safety standpoint as well, it should be much advanced than my previous car. Right. So then you started looking at different brands Absolutely. and then you came to Punch, like you took a test drive and like वो हमें जर्नी थोड़ा बताइए कि कैसा रहा? मेरा पहला जो the first car that I took a test drive, वो पहला कार था, वो था Renault Kiger. अच्छा, Our Renault Kiger was from the price standpoint, it was a bit higher at that time. But still, I took a test drive and I felt it was a decent car. And then I went to the Nissan Magnite, but the Nissan Magnite automatic variant doesn't have the AMT. अच्छा, It's the Renault Kiger that has the AMT variant. And in the meantime, I came to know about Citroen, but it was a very recent launch. So at that time, I had absolutely no idea about it, that Citroen C3 is coming. okay. I also took a test drive of Maruti Baleno and the Suzuki Ignis, both of them. Achha. But I didn't feel that, that feel of safety and security and build that I felt in Tata Punch. ओके। हमें बताइए कि आप जब पंच बुक किए फाइनली उसके बाद आपको कितना दिन में ये गाड़ी डिलीवर हुआ? देखिए, जब मैं बुक करा मार्च फर्स्ट वीक में अराउंड अप्रोक्सीमेटली, तब आई थिंक द शोरूम पीपल टोल्ड मी दैट इट करीबन 5 महीना तो लग जाएगा मिनिमम। अच्छा, लेकिन मेरा ऑलमोस्ट 6 महीना लग गया ऑलमोस्ट क्लोज टू 6 मंथ्स। और ये एक्चुअली मैं मार्च में ही बुक करा था एंड आई गॉट इट बाय सितंबर।
अच्छा, तो वेट टाइम ज़्यादा था बिकॉज ऑफ द AMT वर्जन, मैनुअल ज़्यादा जल्दी मिल रहा था, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, आई वॉज गेटिंग ए हायर मॉडल। मेरे को जरा इससे जो हायर मॉडल है एडवेंचर रिदम, उसका मैनुअल वर्जन आई वॉज गेटिंग इन लेसर टाइम। अच्छा, जल्दी मिल रहा था। लाइक 3 महीने में मिल जाएगा ऐसा बोल रहे थे। अच्छा। आई वॉज नॉट श्योर, बट मेरा रिक्वायरमेंट AMT का था, सो इट टुक अ लिटिल मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड। ओके, सो आप हमें बताइए कि अब तक आपने कितना गाड़ी चला चुके हैं, कितना किलोमीटर, थोड़ा शेयर कीजिए हमारे साथ। तो अभी तक तो मैं लगभग 500 से 550 किलोमीटर तक ही चलाया हूँ, क्योंकि गाड़ी मुझे मिला ही है 1-1.5 महीने पहले। अच्छा। और फर्स्ट सर्विस अभी भी पेंडिंग है, प्रॉब्ली 26th ऑफ दिस मंथ मेरा फर्स्ट सर्विसिंग हो जाएगा। अच्छा। सर्विस होने के बाद में आई एम गोना टेक इट फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्राइव। अच्छा, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अभी नेक्स्ट सेगमेंट में हमारा प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ओनिंग टाटा पंच। इतना कम टाइम में भी क्या एक्सपीरियंस किए हैं हमारे साथ, आप शेयर कीजिए। तो चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं कि टाटा पंच का क्या इसमें ख़राब है, व्हाट आर द कॉन्स दैट यू फेस इन दिस कार। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स आउट फ्रॉम द पीपल मिक्स्ड रिव्यू, दे से दैट कि इसका इंजन और जो रोड नॉइज़ है वो केबिन में बहुत ज़्यादा आता है। तो आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है क्या? 500 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद में मुझे तो ऐसा कोई इंजन नॉइज़ नहीं लगा इसमें। अच्छा। क्योंकि जब मैं टेस्ट ड्राइव भी किया था, जो टेस्ट ड्राइव व्हीकल था वो ऑलमोस्ट 7,000 किलोमीटर चला हुआ था। अच्छा। उसमें भी कोई इंजन नॉइज़ नहीं था। अच्छा। इसमें भी कोई इंजन नॉइज़ नहीं है, और दिस इज द स्मूथेस्ट इंजन, 3 सिलेंडर इंजन दैट टाटा हैज एवर बिल्ट। और रोड नॉइज़ भी नहीं आता। अगला पॉइंट जो सुनने को आया है कि इसका जो AC का कूलिंग है अंदर में केबिन, उसमें कुछ खास कूलिंग का इफेक्ट नहीं आता है। तो आपने क्या ये सब एक्सपीरियंस किया है? नहीं, AC का देखिए ऐसा नहीं है। AC का इसमें इट्स मोर देन एडिक्वेट, मतलब आप साउथ इंडिया का समर सीजन के हिसाब से इट्स मोर देन सफिशिएंट एंड एडिक्वेट। अच्छा, आपको कुछ प्रॉब्लम वैसा फेस कुछ नहीं? भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो पीछे का AC का कूलिंग वेंट है वो भी मिसिंग है, जैसे दूसरे सेगमेंट्स में आते हैं। तो पीछे में कुछ प्रॉब्लम होता है कूलिंग का? इसका जो AC का वेंट है, जो सेंट्रल वेंट है, उसका डिज़ाइन ऐसे बनाया है कि पीछे वाले पैसेंजर को भी एयर आएगा। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ? मेरे फैमिली मेम्बर्स तो अभी तक कंप्लेन नहीं करे। अच्छा, ओके। तो अगला जो नेगेटिव पॉइंट पंच का है वो है कि इसका फ्रंट में आर्मरेस्ट नहीं है, कोई सा भी वेरिएंट में इसका। यही सेगमेंट में दूसरा गाड़ी का में आर्मरेस्ट है, तो वो आपको कुछ दिक्कत नहीं होता है? मैं जब ड्राइव करता हूँ तो मुझे आर्मरेस्ट का ज़रूरत नहीं पड़ता। आई मोस्टली ड्राइव विथ माई आर्म्स ऑन द स्टीयरिंग इटसेल्फ। और मेरा जो पुराना कार था Hyundai Accent, उसमें भी आर्मरेस्ट नहीं था। अच्छा। तो मेरे लिए वो क्राइटेरिया में नहीं। अच्छा, और फिर इसका सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही पीछे का बैक सीट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट आता है, तो वो भी कंफर्ट में कुछ डिफरेंस आता है, इसमें तो नहीं आता है? बेस मॉडल और टॉप एंड मॉडल का पीछे का सीट ऑलमोस्ट कंफर्ट लेवल में सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट फील गुड फैक्टर है। अच्छा, और आपका ये वेरिएंट में रियर पार्किंग कैमरा प्लस टच स्क्रीन नहीं आता है, तो वो तो आजकल बहुत ज़रूरी है, तो आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ? हाँ, रियर पार्किंग कैमरा होना बहुत ज़रूरी है, और अभी के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। राइट। तो मेरे लिए ये ज़रूरी था, क्राइटेरिया में था। लेकिन अगर मैं जो रियर पार्किंग कैमरा वाला वेरिएंट में जाता हूँ तो मेरा जो कॉस्ट वेरिएशन है बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। तो इसलिए आई वेंट फॉर आफ्टर मार्केट रियर पार्किंग कैमरा विथ 9 इंच टच स्क्रीन, और ये कॉपलर टू कॉपलर फिटिंग है, इसमें आपका वारंटी वॉइड नहीं होता। ओके। तो इसमें और एक चीज़ जो है कि सामने की तरफ इसका DRL नहीं आता ये वेरिएंट में, सिर्फ टॉप में ही आता है, और पीछे का टेल लाइट भी हैलोजन है, LED नहीं है, तो वो भी आपको कुछ क्राइटेरिया में नहीं था? DRL मैंने इसमें आफ्टर मार्केट DRL लगाया है LED अच्छा। का, तो इट इज़ मोर देन एडिक्वेट। दिन में भी अच्छा दिखता है, इट लुक्स गुड। अच्छा। और हाँ, सारे जितने भी बल्ब्स हैं बेस वेरिएंट में दैट सब हैलोजन ही है। अच्छा, तो उसमें आपको कुछ दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मोर देन एडिक्वेट फॉर डेली यूसेज। ओके। इसका अंदर का जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो भी सुनने को आया है कि कुछ खास क्वालिटी का नहीं है, तो आपको ऐसा कुछ लगा? जो प्लास्टिक का क्वालिटी है वो इस सेगमेंट में इट्स बेस्ट इन क्लास, आई वुड से। अच्छा। और पहले जो पुराने टाटा के कार्स आते थे उससे तो इट्स 1000 टाइम्स बेटर, 1000 गुना अच्छा है। और चाहे वो इंटीरियर प्लास्टिक हो या एक्सटीरियर प्लास्टिक हो, यू विल नॉट फील लाइक इट्स अ चीप कार। अगला जो पॉइंट है वो है कि ये 1.2 लीटर्स इसका इंजन है, इसमें 84 bhp पावर और 130 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। उस हिसाब से अगर कंपेयर करें 1.2 लीटर दूसरे ब्रांड के गाड़ी जैसे मारुति हुंडई का, उसका कंपैरिजन में पावरफुल इनफ नहीं है, तो आपको कैसा लगता है?
अग्री विद इट, थोड़ा पावर कम है, थोड़ा पावर कम फील होता है क्योंकि कार बहुत हैवी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। तो अगर हैवी कार आप चलाएंगे विद द स्मॉलर इंजन तो ऑब्वियसली यू विल फील द लैग। अच्छा, लेकिन सिटी ड्राइव में इट्स मोर देन एडिक्वेट। अच्छा, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा। और सिटी ड्राइव में इफ़ यू आर ड्राइविंग इन सिटी मोड यू विल फील गुड पावर आउटपुट एंड गुड एक्सेलरेशन। अच्छा, और वैसे टाटा पंच में आपका डीजल वेरिएंट या टर्बो वेरिएंट नहीं आता है, सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और AMT मॉडल आता है। तो आपको डीजल का कुछ ऑप्शंस वैसे था नहीं, बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ? नहीं, मेरा फ्रॉम डे वन मेरा टारगेट पेट्रोल वेरिएंट पे ही था। अच्छा, और डीजल वेरिएंट मेरा आई डोंट लाइक डीजल कार्स, सो इट वाज नेवर इन माय टारगेट। अच्छा, तो पेट्रोल वाइज अगर आप देखेंगे तो इसका माइलेज और इसका कन्वीनियंस, इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट, ओनरशिप कॉस्ट जो है, इट इज़ आई थिंक समवट बेटर देन अ डीजल कार अच्छा, विद इन द सेम कैटेगरी आई वुड से। और इससे थोड़ा भी अगर हायर वेरिएंट में जाते हैं डीजल में तो उससे दिस इज मच मोर अफोर्डेबल। अगला जो पॉइंट है वो है, सुनने को आया है कि पंच का जो फिट एंड फिनिश का जो क्वालिटी है, लाइक पैनल में कुछ ज़्यादा कम कैप्स है, छूट जाता है या वैसा कुछ सुनने को आया। तो आपका यूनिट में ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कार डिलीवरी से एक दिन पहले पर्सनल PDI करा था, पर्सनली जा करके शोरूम में कार को चेक करा था and I never found anything missing or any kind of panel gaps, so called panel gaps, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्वालिटी वाइज there is no problem। all good, all well। जो अगला ग्लेयरिंग पॉइंट नेगेटिव वाला आता है उठ के, वो है कि पंच में जो वेरिएंट्स डिफरेंट चार्टो है उसके कंपैरिजन जो करो, अगर उसमें एक से ऊपर वेरिएंट अगर जाओ तो जो प्राइस डिफरेंस होता है वो थोड़ा ओवर प्राइस लगता है। तो डू यू एग्री? यस, आई डू अग्री ऑन दिस फैक्ट। क्योंकि से फॉर एग्जांपल आप मेरी कार का एग्जांपल ले लीजिए, मैंने एडवेंचर AMT वेरिएंट लिया है। अगर मैं एडवेंचर रिदम AMT वेरिएंट लेता हूँ तो आई विल एंड अप पेइंग 30 to 35,000 एक्स्ट्रा। अच्छा, तो ये प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स द रीज़न व्हाई आई डिसाइडेड टू बाई अ लोअर वेरिएंट एंड देन ऐड आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज टू इट। जो लास्ट पॉइंट नेगेटिव आता है, कोई भी टाटा का गाड़ी खरीदो, मतलब लोग का बिगेस्ट कंप्लेन रहता है कि जो बाइंग एक्सपीरियंस है टाटा का और जो आफ्टर सेल्स का जो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू आउट द कंट्री बहुत ही नेगेटिव होता है। तो आपका बाइंग एक्सपीरियंस पंच को लेके कैसा रहा? देखिए, मेरा बाइंग एक्सपीरियंस वाज आई वुड से नॉट दैट गुड, क्योंकि जो प्राइस ब्रेकअप उन्होंने पहले दिया था और जो एक्चुअल अमाउंट मैं पे किया उसमें डिफरेंस था। अच्छा, जो इंश्योरेंस अमाउंट पहले उन्होंने बताया 28,000, बाद में जब उन्होंने लॉगिन किया तो वो 25,000 का लॉगिन किया। अच्छा, तो 3,000 रुपया मेरा जो है एक्स्ट्रा पेमेंट चला गया। अच्छा, तो बाइंग एक्सपीरियंस आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, नॉट हैप्पी। बट हाँ, सर्विस सेंटर का आई वुड से कि अभी तो मेरा फर्स्ट सर्विस हुआ अभी नहीं, तक एक्सपीरियंस किया नहीं है। एक्सपीरियंस किया नहीं, बट इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड शोरूम टू शोरूम एंड सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर। राइट, राइट। पर आप अगर इसका वेटिंग पीरियड भी देखो, जैसे आप बता रहे थे कि आपको एक टाइम फ्रेम बताए थे, उससे ज़्यादा ले लिए, उसका भी एक्सपीरियंस आप थोड़ा शेयर कीजिए। हाँ, वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा था। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी 1-2 हफ्ते ज़्यादा बोल सकते हैं। अच्छा। आई मीन 10 दिन 15 दिन ज़्यादा बोल सकते हैं। बट ओवरऑल जो प्रोडक्ट आपको मिला है, जो चीज़ आपको मिल रही है, इट वॉज वर्थ वेटिंग। सो अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में जाएंगे और इसका जो प्रोज है, इसमें जो अच्छी बात है वो डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट उठ के आती है कि इसका जो राइड क्वालिटी है, इसका जो हैंडलिंग है, सस्पेंशन है, बहुत अच्छा है। तो आप जितने भी चलाए हैं इतना दिन में, हाउ डिड यू फील? सबसे पहले तो जो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है कार का। राइट, 187 मिलीमीटर इज एक्सेलेंट। राइट, इस सेगमेंट में तो सबसे अच्छा है। उसके बाद जो स्टेबिलिटी एंड हैंडलिंग है वो बहुत ही अच्छा है। Right. इट्स लाइक इवन व्हेन वी हैव अ ट्विस्ट बीम टाइप सेटअप, पीछे में जो ट्विस्ट बीम सस्पेंशन है दैट इज स्टिल ओके एंड एडिक्वेट टू हैंडल बैड रोड्स, और इट्स वेरी स्मूथ, वेरी कंफर्टेबल। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो आगे का सस्पेंशन है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन दिस सेगमेंट। अच्छा, गड्ढे और बम्पर से जब जाते हैं तब उतना फील बहुत स्मूथ चलता है और फील नहीं आता, मतलब अंदर में आपको वाइब्रेशन या हार्शनेस फील नहीं आएगा। अच्छा, ओके। अगला जो पॉइंट है वो है कि इसका लुक्स हैरियर का छोटा भाई लगता है, तो आपको वो लुक्स के हिसाब से आपको अच्छा लगा था खरीदने के टाइम? इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, इट्स लाइक वेरी प्रोपोर्शनेट है
और इसमें जो स्ट्रेट लाइंस है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फ्रंट गोज टू द बैक और जो टेल लाइट है, टेल लाइट से एक सर्कल होकर के नीचे फेंडर पे आता है. सो दिस इज द डिटेलिंग दैट टाटा हैज़ डन एंड दे हैव डन ट्रेमेंडस एफर्ट. बहुत ज़्यादा मेहनत की है डिज़ाइन में. और हाँ, ये बेबी हैरियर बोल सकते हैं एंड इट लुक्स ग्रेट, इट लुक्स गुड. जो अगला पॉइंट पॉजिटिव है वो है कि इसमें टाटा का सबसे रिलायबल इंजन है. तो जब आप गाड़ी चूज़ किए थे तब टाटा का गाड़ी का एक लेने का फैक्टर ये भी होता है. तो लाइक आपको कैसा लगा अब तक? हाँ, इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है एंड इट्स बेसिकली फिएट्स टेक्नोलॉजी. अच्छा. तो इस हिसाब से ये भी एक फैक्टर बनता है कि यू आर बाइंग द मोस्ट रिलायबल इंजन. और दूसरा चीज़ ये है कि इसको मेंटेन करना बहुत इजी है. यू कैन एक्चुअली इसका जो जिस तरीके से इसका सेटअप बनाया है इंजन बे में और जिस तरीके से इसका जो ऑयल फिल्टर का सेटअप है, यू डोंट हैव टू जैक द कार अप टू रिमूव द ऑयल फिल्टर. तो आप खुद से भी ऑयल चेंज कर सकते हो, फिल्टर क्लीन कर सकते हो, ऑयल फिल्टर रिप्लेस भी कर सकते हो. यू डोंट हैव टू नीड अ मैकेनिक ऑलवेज टू सर्विस योर कार. अच्छा, आपसे जब डिस्कशन हो रहा था आप बता रहे थे कि इसका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स है उसका पोजीशनिंग बोलिए वो सारे बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है टाटा का इस गाड़ी पे. तो आप थोड़ा डिस्क्राइब करें हमें. हाँ, सो इसका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम और वायरिंग है इज़ वेल इंसुलेटेड एंड वेल आइसोलेटेड. अच्छा. तो इसमें आपको कभी कभी क्या होता है कि आप जब कार बाहर पार्क करते हैं तो रैट्स डैमेज कर देते हैं, बाइट कर लेते हैं वायर्स कट जाते हैं. तो ये चीज़ इसमें होने के चांसेस नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट क्लोज टू नील. दूसरी चीज़ ये है कि स्पेशली रेनी सीजन में कभी कभी कहीं पे वाटर लॉगिंग होता है तो वाटर वेडिंग करना पड़ता है. मतलब उतना ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत अगर वाटर वेडिंग करना चाहे तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में पानी जाने का खतरा रहता है. तो इसमें वो चीज़ नहीं है. तो इससे क्या होता है कि आपकी कार की लॉन्गेविटी भी बढ़ती है और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स नहीं आते. अच्छा. अगला जो पॉइंट है वो है पंच में जो सीटिंग है वो क्वालिटी बोलिए या कंफर्ट बोलिए बहुत ही अच्छा है इस सेगमेंट का गाड़ी के हिसाब से. तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रा शेयर कीजिए. हाँ, इसका सीटिंग कैपेसिटी जो 5 सीटर कार के हिसाब से इन कॉम्पैक्ट सेगमेंट सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है. आई एम 6 फीट टॉल ऑलमोस्ट एंड माई डैड इज़ ऑल्सो 6 फीट टॉल. और मेरे पापा हमेशा बैक सीट पे ही सिट करते हैं तो उनको नी रूम बहुत अच्छा मिलता है. अच्छा. और दूसरा सबसे अच्छा चीज़ मुझे ये लगा कि इसके जो सेंट्रल टनल है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू फ्लैट है. इट्स लाइक समवट लाइक ए रेक्टेंगल शेप. तो इससे क्या है, इट गिव्स एन इजी एक्सेस टू द पर्सन हु इज सिटिंग इन द मिडिल सीट. पीछे में yes. अच्छा. इसका जो अगला एक फीचर बोल सकते हैं वो है इसका जो डोर्स है, चारों डोर्स वो 90 डिग्री एंगल में खुलता है. Right. तो ऑफ कोर्स पीछे में जिन लोग अगर बड़े बुजुर्ग बैठ रहे हैं तो उन लोग के लिए एक्सेस थोड़ा इजी हो जाता है. पर जिन लोग सामने बैठते हैं जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपके लिए कैसा रहा? हाँ, तो उसमें होता ये कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात तो ये 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में नहीं आया फ्रैंकली स्पीकिंग, जस्ट बीइंग ऑनेस्ट. क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा डोर को ओपन करते हो तो you literally have to bend to pull the door, and the doors are very heavy because of its build quality. So that was something that was not required, but still is there, which is fine, no problem. दूसरा एक चैलेंज ये है कि अगर आप टाइट पार्किंग स्पेस में कार रखे हो, so you will never need the door to open at 90 degree. You won't be able to. It will not be able to. It will not be required as well. बस आपने बिल्ड क्वालिटी का बात उठाई है तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट पॉइंट ओनली. इसको 5 स्टार रेटिंग अडल्ट सेफ्टी में इनकैप में मिला है, 4 स्टार चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग. तो इसका टाटा का वैसे भी गाड़ी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होता है. तो आप जब गाड़ी खरीद रहे थे तब ये एक फैक्टर प्ले कर रहा था. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे लिए. मुझे एक्चुअली जो कार चाहिए था उसमें एटलीस्ट 2 एयरबैग्स होने चाहिए थे एंड शुड बी सेफर टू ड्राइव स्पेशली ऑन दी हाईवेज. तो हाईवे ड्राइविंग के लिए ये बहुत ही सेफ कार है. और इसकी जो स्टील का जो थिकनेस है वो नॉर्मली जो इस सेगमेंट में जो कार्स आते हैं उससे थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बेटर है. यू कैन एक्चुअली फील, आप डोर ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे तो आपको फील आएगा. और इसका क्रम्पल जोन जो है, ये क्रम्पल जोन है, ये बहुत बड़ा है, बहुत ही अच्छा है. और ये पिलर्स बहुत थिक है. तो इससे क्या होता है कि आपको एडिक्वेट सेफ्टी तो मिलता है, आपको इम्पैक्ट प्रोटेक्शन भी मिलता है और एयरबैग्स तो है ही. तो इट मीट्स माय क्राइटेरिया. इसमें कितना एयरबैग? 2 एयरबैग्स. अच्छा, फ्रंट पैसेंजर. अगला जो पॉजिटिव आता है वो है कि टाटा का गाड़ी कस्टमाइजेशन आफ्टर मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो उस हिसाब से आप बता रहे थे, थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए.
मैं बोलूँगा कि ये जो कार है दिस इज़ द बेस्ट कैनवास फॉर पीपल हु वांट टू कस्टमाइज देयर कार। अच्छा। मार्केट में एक्सेसरीज बहुत सारे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, अफोर्डेबल एक्सेसरीज भी हैं, एक्सपेंसिव एक्सेसरीज भी हैं, और बॉडी किट्स बहुत सारे मिल रहे हैं। अच्छा। इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर तक आपको कपलर टू कपलर फिटिंग वाले ब्रांडेड एक्सेसरीज भी मिल जाएंगे। तो इसमें आप अगर थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करेंगे तो इट विल डेफिनेटली लुक डिफरेंट, लुक गुड। और अभी ये बहुत ज़्यादा बिक रही है, बहुत ज़्यादा सेल है। इनफैक्ट कुछ दिनों में नेक्सन का जो सेल है उसको भी ओवरटेक कर सकता है। अच्छा। और इट्स वेरी केपेबल कार। तो इसमें जो जिन लोगों को कस्टमाइज़ करना है आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज के साथ और जो थोड़ा सा डिफरेंट फील चाहते हैं कार में, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। तो जो आखिर पॉइंट जिसमें हम लोग ये वीडियो ख़त्म करेंगे वो है कि टाटा पंच का जो गाड़ी है, हाउ डू यू फील, लाइक डू यू फील दैट इट्स अ वैल्यू फॉर मनी कार? द मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट जो है इट्स अ वेरी हाई वैल्यू फॉर मनी। अच्छा। अगर आप AMT में जाते हैं तो यू विल बी स्पेंडिंग लाइक क्लोज टू 60,000 ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा ऑन द मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट, लेकिन उसमें आपको कन्वीनियंस मिलता है, उसमें आपको इट इज़ ईजी टू ड्राइव, तो ये चीज़ है। माइलेज थोड़ा कम है मैनुअल ट्रांसमिशन से। आई एम गेटिंग अराउंड 14 to 17 किलोमीटर्स पर लीटर इन सिटी, अच्छा। विद इन द सिटी। और जो इसी का मैनुअल वेरिएंट है, आई हैव हर्ड पीपल गेटिंग मोर देन 20 किलोमीटर्स पर लीटर। अच्छा। तो माइलेज वाइज एंड ओनरशिप वाइज द मैनुअल ट्रांसमिशन वर्जन इज़ वेरी हाई वैल्यू फॉर मनी। ये भी है, बट मेरे लिए कन्वीनियंस थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी था, क्योंकि आई वांटेड समथिंग इन ऑटोमेटिक और AMT वेरिएंट। तो इस हिसाब से इट्स डिसेंट, इट्स गुड, इट्स मोर देन एडिक्वेट। Okay, so thank you for joining with me today to do this interview. I know it takes a lot. It's my honor to be with you, and I'm hoping कि मेरा ये जो रिव्यू है, हमने जो रिव्यू बनाया है, इस रिव्यू से जो नए ओनर्स हैं जो प्लान कर रहे हैं नई कॉम्पैक्ट कार खरीदने के लिए, उनको कुछ इंसाइट्स एंड ऑब्जर्वेशन मिलेगा सो दैट दे कैन मेक अ बेटर चॉइस। Right. Yeah, I hope to. Thank you. मेरा अगर एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ टाटा पंच के बारे में, येस इट्स अ वेरी गुड कार। इसका जो सेफ्टी रेटिंग बोलिए या बिल्ड क्वालिटी बोलिए, इसका जो रनिंग है, इसका जो सस्पेंशन है, माइलेज है, ऑल आर वेरी गुड। बट समहाउ आई फील द टू फैक्टर goes against a new owner buying this car. The first being the buying experience and the service experience, जो I feel कि टाटा अगर और अच्छा करे, educate करे अपने marketing sales team को, तो I think that would benefit them in the long run. और जो दूसरा चीज़ है वो है कि इसका waiting period. People look to buy their cars and they don't not to wait for a long time. जो waiting period इसका है वो कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसी दौरान पीपल चेंज देयर माइंड एंड दे गो फॉर सम अदर ब्रांड्स। सो टाटा अगर ये दो चीज़ में इम्प्रूव करे तो आई थिंक इट वुड बेनिफिट देम एज वेल एज द कस्टमर्स इन द लॉन्ग रन। आई जस्ट होप कि ये जो रिव्यू मैंने बनाया है ये बहुत जन तक पहुँचे एंड पीपल आर वेल इन्फॉर्म्ड बिफोर दे बाई टाटा पंच। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बहुत जन के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो इट वुड बी नाइस इफ़ यू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। टिल द नेक्स्ट टाइम,